Good morning, students. Let's start your next chapter, chapter number 8. The name of the chapter is Journal. Okay, so it's a very important chapter. For journal, we have already done the rules. Journal depends upon two rules, modern approach and traditional approach. But till now, we have done only modern approach. We'll be solving journal with modern approach, right? Before I start with the journal, just a little introduction. Journal is what? Journal, you all know, it is a primary book. Journal is the original book in which all transactions are recorded in chronological order in the beginning of any transactions. Okay. So what is journal? It is the evidence of business transactions. जितनी भी business transactions हुई हैं, those business transactions which can be measured in term of money, have to be recorded in a books, and the name of the book is journal. When all transactions are being recorded in a book journal, these are recorded based on some evidences. These are the evidences that that transaction has been conducted in the class, that the transaction has been conducted in the बिजनेस सॉरी ओके दीज एविडेंस कैंस बी बिल्स ऑफ परचेज क्या होगा तो उसके बिल्स होंगे इनवॉइसेस फॉर सेल्स डेबिट नोट क्रेडिट नोट व्हाट इज डेबिट नोट क्रेडिट नोट दैट विल बी एक्सप्लेन लेटर ऑन बट दीज ऑल डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड source documents. These source documents are the proof that the monetary transaction has been conducted in the business. And when any transaction has been conducted in the business, these have to be recorded in the books. And there are two major books. One is journal and one is ledgers. So today we'll be learning about journal. Journal is what you all know. It is a book in which transactions are recorded in a chronological orders. When we speak transactions are recorded. Transactions are recorded. Once transactions are recorded, afterwards the transactions are being transferred. Transfer means posted. Transfer means posted to the ledger account. जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद वो लेजर में ट्रांजैक्शन पोस्ट की जाती है. ओके, हाउ डू वी फ्रेम जर्नल? जर्नल की बुक का फॉर्मेट क्या है? दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल. ओके, फॉर्मेट ऑफ जर्नल. Date, number one you will be writing date, then particulars, then LF means ledger folio, debit amount, credit amount. We have already discussed all the transactions have at least two effect. One is debit and one is credit. Okay, number one date, number two particulars, number three ledger folio, number four debit amount, number five credit amount. Okay, transactions record कैसे रखते हैं? We need to write here date. जिस दिन को वो transaction हुई है, you'll be writing here date. Clear? Particulars में क्या लिखना है? दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं, हम कर चुके हैं ऑलरेडी. अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने देख लिया, कम से कम दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं. ओके, उसको लिखना क्या है? एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है. जो डेबिट होता है, कोई भी अकाउंट जो भी इसका नाम होगा, कैश, स्टॉक, जो भी होगा, डैश डैश अकाउंट डेबिट, जो भी अकाउंट का नाम होगा. यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखना, वी नीड टू लीव लाइक दिस. उसका जो भी अमाउंट होगा यहाँ पे लिखना है. ओके, क्रेडिट, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ के, दैट्स कंपल्सरी टू लीव स्पेस, थोड़ा सा राइट हैंड करके, टू डैश अकाउंट, जो भी अकाउंट का नाम होगा, और उसका अमाउंट क्रेडिट कॉलम में. डेबिट का अमाउंट डेबिट कॉलम में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में. जो भी ट्रांजेक्शन्स हमने किया उसकी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है एक लाइन में. व्हेन यू स्टार्टेड द बिजनेस यू कैन राइट बिजनेस स्टार्टेड. ओके, बट यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम राइटिंग बीइंग. पहले हमने क्या वर्ड यूज़ करना है? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड. दिस इज कॉल्ड नरेशन. उसको बोलते हैं नरेशन. ओके, लेकिन ये जर्नल एंट्री बनाते कैसे हैं? विल बी लर्निंग जर्नल एंट्री थ्रू मॉडर्न अप्रोच. ओके, ट्रेडिशनल अप्रोच से नहीं, मॉडर्न अप्रोच से, और इसको अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं. ओके, these are some transactions which I have written. First I tell you the first transaction. Yeah. First transaction, started business with cash.
जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन करते हो, ओके, इसमें ऑलरेडी आपको हम बता चुके कितने अकाउंट इफेक्ट होते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 2 अकाउंट कौन कौन से, कैश और कैपिटल। ओके, ठीक है, कैश इज योर एसेट, कैपिटल इज योर कैपिटल। कैश आपका बड़ा, कैपिटल भी आपकी बड़ी, बड़ी मीन्स प्लस। जब एसेट बढ़ता है तो क्या रूल है, इट इज़ ऑलवेज डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड। कैपिटल बड़ी, व्हेन कैपिटल इंक्रीज होती है इट इज़ ऑलवेज क्रेडिट। तो डेबिट क्या हुआ, कैश, और क्रेडिट क्या हुई, कैपिटल। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ। अब इसको जर्नल एंट्री में लिखना कैसे है, ये देखो, ये मैंने फॉर्मेट बनाया, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। डेट नहीं है तो मैंने नंबर 1 डाल दिया। कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ था, सबको देखा था सबने, कैश अकाउंट डेबिट हुआ था, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट, ये मतलब जो डेबिट हुआ 50,000। कितने से बिजनेस स्टार्ट किया, 50,000 से। लीव स्पेस, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़नी इसलिए मैंने लिख दिया। थोड़ा सा आगे जाके 2, क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ था, कैपिटल, 2 कैपिटल अकाउंट, 2 कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट के कॉलम में 50,000, राइट। नरेशन में हमें लिखना है बीइंग द कैपिटल इन्वेस्टेड, इसको बोलते हैं नरेशन। अब इसी ट्रांजैक्शन में आपको एक तरह और समझा सकती हूँ सेम चीज़ में, अगर इसलिए आपने लिखना है अकाउंटिंग इक्वेशन क्यों कहते हैं। आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अगर आपने इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखना हो तो कैसे लिखते कैश बड़ा, कैपिटल बड़ी। कैश बड़ा एसेट साइड है तो डेबिट, कैपिटल बड़ी तो क्रेडिट। सो कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, इजी। नेक्स्ट, परचेज गुड्स विद कैश 10,000। आपने 10,000 की गुड्स परचेज की, ठीक है ना। इस फॉर्म में करते हैं, परचेज गुड्स परचेज की तो आपके पास क्या आया, 2 अकाउंट कौन से इफेक्ट हुए, स्टॉक और कैश। स्टॉक आपका बढ़ गया, कैश आपका कम हो गया। स्टॉक आपका क्या है, एसेट, कैश भी आपका क्या है, एसेट। जब स्टॉक बढ़ गया तो डेबिट, जब स्टॉक कम हो गया तो क्रेडिट। ओके, अब इसको इसी फॉर्म में देखते हैं, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ओके, कैश बढ़ा, कैश कम हुआ सॉरी, प्लस स्टॉक बढ़ा, इधर नो इफेक्ट। ओके, एसेट कैश डिक्रीज, स्टॉक इंक्रीज। व्हेन एसेट डिक्रीज इट्स क्रेडिटेड, यही आपका रूल कहता है, ऑल एसेट्स व्हेन इंक्रीज डेबिट, ऑल एसेट्स व्हेन डिक्रीज क्रेडिट। स्टॉक जब डेबिट हुआ, स्टॉक जब बढ़ा तो डेबिट किया। एक चीज़ याद रखनी है कि हमारा स्टॉक बहुत चीज़ों में यूज़ होता है। स्टॉक बढ़ रहा है, स्टॉक कम हो रहा है, स्टॉक खरीद रहे हो, स्टॉक बेच रहे हो, तो हमने स्टॉक को स्टॉक नहीं लिखना या गुड्स नहीं लिखना, जिस इवेंट के लिए ट्रांजैक्शन हुई है उसका नाम लिखना है। अब ये स्टॉक बढ़ा है, किस इसके पीछे इवेंट क्या है, ट्रांजैक्शन क्या थी, परचेजेस, तो स्टॉक को हमने क्या लिखना है, परचेजेस। हमने स्टॉक वर्ड यूज़ नहीं करना, विल बी यूजिंग द वर्ड परचेजेस इन जर्नल एंट्री। तो डेबिट हो रही है परचेजेस, क्रेडिट हो रहा है कैश। परचेजेस अकाउंट डेबिट 10,000, थोड़ी सी जगह छोड़ी, टू कैश अकाउंट 10,000, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ओके, थर्ड ट्रांजैक्शन, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। व्हाट इज द ट्रांजैक्शन, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। आपने चीज़ें बेची, ओके, कैश में चीज़ें आपने बेची। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब चीज़ें बेची, कैश इफेक्ट हुआ और स्टॉक इफेक्ट हुआ, इस तरफ इफेक्ट नील आया। कैश बढ़ गया, स्टॉक कम हो गया, इस तरफ नील इफेक्ट। कैश जब बढ़ा तो डेबिट, स्टॉक जब कम हुआ तो क्रेडिट, बिकॉज एसेट्स रिड्यूस क्रेडिट। अब स्टॉक जब कम हुआ तो उसके लिए इवेंट क्या है, व्हाट इज़ द इवेंट जिसके लिए कम हुआ, इसके पीछे जो इवेंट छिपा हुआ वो क्या है, सेल्स। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बन गई,
नंबर 3, कैश अकाउंट डेबिट, कैश बढ़ा तो डेबिट हुआ। 2, सेल्स अकाउंट, स्टॉक कम हुआ तो क्रेडिट हुआ, लेकिन हम स्टॉक नहीं लिखेंगे। देखो यहाँ भी स्टॉक था, यहाँ भी स्टॉक था। यहाँ स्टॉक के पीछे इवेंट क्या था, परचेज, तो मैंने परचेज लिख दिया। यहाँ स्टॉक के पीछे इवेंट क्या था, सेल्स, तो मैंने सेल्स लिख दिया। अगर आप दोनों जगह स्टॉक लिखोगे तो इट विल बी अ कन्फ्यूजन। तो इसके पीछे जो इवेंट है वो हमने लिखना है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000। ओके, सो दिस इज द वे यू हैव टू परफॉर्म द ट्रांजेक्शन्स। इसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग द ट्रांजेक्शन्स को जर्नलाइज कैसे करते हैं। ओके, गो थ्रू दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट, kindly ask me. Thank you.